9 ये क्या 3-1 और यहाँ क्या दिखा रहा है ये? नहीं एक मिनट आपसे कुछ नहीं कह रहे, इनको समझना चाह रहा है। ऐसा क्यों दिखाता? जी जी बताइएगा। 3141 यस जी जी। तीन सवाल हैं, एक कुश्ती महासंघ, एक विलियम बेंटिक और तीसरा जो है वो एनवायरमेंट का। ग्रीन मफलर भी है। टोटल 5 है मतलब। टोटल 5 है? यस सर। अच्छा ठीक है, चलिए एजी साहब को बताने दीजिए जी। As per your lordship direction, the Secretary of Madhya Pradesh Public Service Commission जी is present in the court along with the desired record. जी So, but Madam, there are few important things, Madam. हाँ बताइए ना, I wish to बताइए place it before your lordship. जी। So this is the writ petition. My lord, may kindly see page 3, Madam, the cause title. Madam, no person is impeded in personal capacity. ठीक है। Now, Madam, no allegation of malafide is levied in the whole writ petition. And my lord, may kindly see what is the foundation of filing these writ petitions. The petitioner is raising ground that had he been awarded the marks by adding the marks of the questions as stated above, जी he would have been declared as eligible. जी जी Now, my lord, if we go through with the clause of grounds, all presumptions are there. जी जी Now, this is the foundation which is there, my lord, seeking writ of mandamus by the Honorable Court. And with this backdrop, my lord, in page 12 of the writ petition, final reliefs are claimed. yes To issue a writ in the nature of mandamus by directing the respondent to amend the final model answer key contained in annexure P1 by showing correct answer. And the reliefs are there. Now, my lord, almost all writ petitions, my lord, are similarly worded. I'll not go to the extent of saying that they are copy paste and they similarly worded, identical. इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ईज है, एक ने कंप्यूटर पे बनाया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में आइडेंटिकल पीस निकाल दिए, क्या नुकसान है? अब साहब बस इसके इस बैकड्रॉप से कुछ आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट हाँ हाँ रखिए ना। अब सर मैं इलेक्शन P3 पे आपका ध्यान आता है। P3 यस P3 पेज 21 यस ये है साहब एडवर्टाइजमेंट व्हिच वाज इशूड ऑन 5th of September 2020। एक मिनट खुल जाइए जी 5 सितंबर ये है साहब एग्जाम एडवर्टाइजमेंट है सर 5/9/2023। हाँ एडवर्टाइजमेंट ऑन 5/9/2023 जी जी। This advertisement is relating to State's Civil Services Examination 2023. जी जी So the pattern of the examination is 3-stage examination. Initially, we conduct preliminary examination. So elementary, the less meritorious candidates, they are eliminated. So elimination round is there. The successful candidate go to the second round of examination, which we call mains, written examination. And then the successful candidate, they are invited for personal interview. So pattern of examination is 3 stages examination. And the initial 2 stages are elimination rounds. अच्छा मेंस इज आल्सो एलिमिनेशन अच्छा अच्छा based on the cutoff. Now, for the purposes of declaring, how we will conduct the examination, what is the scheme of the examination, we make it very clear in the advertisement itself. So, almost all the candidates are well aware that what is the pattern of the examination, what are the conditions, and what are the norms which are to be taken care of. Now, as per the norms which are made clear in the advertisement, my lord, may kindly permit me to take your lordship to page 26. 20? Page 26. जी. I invite your lordship's tight attention to clause 5. Yes. परीक्षा योजना. कहाँ लिखा है clause 5? साथ clause 5 26 पेज पे clause 26 परीक्षा योजना. yes. इसमें साथ परीक्षा की योजना. जी. इसमें मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्लॉज 2 पर. जी. अब मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेंटर मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रारंभिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट इत्यादि पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. दिस इज इंपॉर्टेंट.
इस अवधि के पश्चात या किसी अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। Is it your case that they were received after the due date? क्या आपका केस है क्या? I respectfully submitting. The moment we published provisional answer key, 7 दिन में आपत्ति ठीक है, 7 days time we have. तो इन्होंने 7 दिन में नहीं की आपत्ति, ऐसा है क्या? बहुत सारों ने नहीं किया, इक्का दुक्का ने किया। तो जिन्होंने नहीं किया उनको बाहर कर देते हैं, बाकी जिन्होंने किया उनको बता दीजिए। जिन्होंने किया, मेरा एक निवेदन था। नहीं तो बता देना उसको, यही इसको कंक्लूड कर देते हैं इसको, एटलीस्ट सो दैट मेनी नंबर ऑफ पीपल विल बी सेट टू रेस्ट। जिन्होंने नहीं की 7 दिन में आपत्ति, उनके नंबर बता दीजिए। मैं सर एक और जी सर, एक इंपॉर्टेंट, फिर मैं आ जाऊं, फिर आप सर नीचे फिर थोड़ा सा पढ़ूंगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और ये ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधानिक उत्तर सूची में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधानिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर ये इसका 5वां रेलेवेंट में आता है। अब ये भी बहुत रेलेवेंट है। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के, नाउ दिस इज रेलेवेंट एंड आई एम सप्लाइंग एम्फेसिस टू इट। अंतिम उत्तर कुंजी की प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा। सो नाउ माय लॉर्ड, I stop referring to this advertisement. My lord is well aware of this fact. My lord, law is settled on this point. My lord, when the conditions are clearly mentioned in the advertisement, they knew it very well that the moment, my lord, they find some discrepancy in the provisional answer key, they have the remedy to find representation within a period of 7 days. Now, my lord, there are 2 categories. One category, first category is, my lord, of candidates who filed the representation, and another category who have not filed any representation. So, both these categories are taken care of by clause 5.5, in which it is mentioned विषय विशेषज्ञ समिति जो है उसका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। कट ऑफ डेट के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। ठीक है। अब साहब ये जब कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में जा रहे, उन्होंने पढ़ा, इसमें एक आग्रह भी किया गया है कि आप कृपया करके इस एडवर्टाइजमेंट की कंडिकाओं को सावधानी पूर्वक पढ़ें। तो एक अपील की गई है वो क्योंकि बंधनकारी हो। अब सर इसमें लॉ सेटल्ड है। सर अगर मान लीजिए ये कंडीशन है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जो फाइनल ओपिनियन जिसके बेस में फाइनल आंसर की पब्लिश की गई है उसको मान्य करना होगा इन कैंडिडेट्स को। इस कंडीशन को किसी ने चैलेंज नहीं, चैलेंज कर भी नहीं सकते सर। सुप्रीम कोर्ट ने सर अशोक कुमार के केस में कहा कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल वुड ऑपरेट बिकॉज you have no problem with this condition. You appeared in the examination. The moment you declared unsuccessful, now you turned back and started scrutiny of the advertisement. And then raising litigation before the honorable court, challenging some condition, which they in fact cannot challenge at this stage. This is my respectful submission, my lord. Now, there are few judgments. नहीं, पहले फैक्ट्स पे पूरा कर लें। पहले फैक्ट्स पे पूरा कर लें। जो पिछली बार कागज दिया गया था उसमें कमेटी कहाँ है, हमने इसीलिए इनको सेक्रेटरी साहब को बुलाया था। जी, कमेटी कहाँ है पहले वो बता दें। कमेटी का कहाँ गठन हुआ, इट विल बी कॉन्फिडेंशियल, आई विल नॉट शो इट टू देम। ठीक है, हाँ, कमेटी का गठन बताइए। कमेटी का गठन हुआ इस नियम के अनुसार और उस कमेटी ने क्या विचार किया। ये जो पिछली बार दिया था ये इससे अलग है क्या? आपकी क्वेरी आंसर करने के लिए ये आज का रिकॉर्ड है। नहीं, उस दिन जो दिया था आपने उसको हमने वापस सील करा दिया था। सर क्या हो रहा है सर, एक मैं निवेदन कर रहा हूँ जी, जैसे कई सारे आंसर्स में आपत्ति आई जी, तो सर क्या होता है, मान लीजिए कि 20 क्वेश्चंस में आपत्ति आई जी, सर कुछ कोर्ट में आ गए, पिटीशन पे कुछ नहीं आया जी, मैं सर आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ जिससे कुछ डाउट क्रिएट हुआ था लास्ट डेट में। तो मान लीजिए 20 क्वेश्चंस में आपत्ति, तो उससे रिलेटेड जो ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है जो भी होता है वो सब लगाकर सर इसका कंपाइलेशन हो गया मान लीजिए। उसमें से जब कोर्ट ने मांगा कोई क्वेश्चन जो बीच का रहा उसका रिकॉर्ड ला, तो उसका रेलेवेंट का इन्हें फोटोकॉपी करके नहीं, आप रेलेवेंट रिकॉर्ड तो आज भी दे सकते हैं। मेरा सवाल समझिए आप। सर उसमें साइन नहीं था। नहीं, वो नहीं, मैं तो आज ये पूछ रहा हूँ आपसे। उन्होंने उस दिन भी पूछा था जिस एक कागज में साइन था। आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द नेम। आपके ऑफिसर ने भी आके बोला था देयर इज अ जजमेंट एंड आई हैव कोटेड इट। कमेटी का गठन इसमें लिखा है विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा। तो वो विशेषज्ञ समिति का गठन का क्या प्रावधान है और उस कमेटी ने क्या कंसीडर किया उतना बता दीजिए। उसके बाद आपका अशोक कुमार का जजमेंट लागू होगा। उतना ही पूछने के लिए बुलाया था इनको सेक्रेटरी साहब को।
बारे में मैंने आपको निवेदन किया है, मैंने पूरा एग्जामिनेशन की योजना नहीं, योजना में तो पढ़ रहा हूँ मैं, आपके एडवर्टाइजमेंट में पढ़ रहा हूँ, पेज 27 पर। वही वही मैं बोल रहा हूँ सर, जो आप रूल्स बोल रहे हैं सर, आर्टिकल 309 पे है, रिक्रूटमेंट को रेगुलेट करने के लिए पीएससी चाहे वो यूनियन की हो चाहे स्टेट की, दे कैन फॉर्मुलेट देयर ओन नॉर्म्स। तो वेयर आर दोस नॉर्म्स? Norms are there in the advertisement. वही तो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाई यू आर ट्राइंग टू डाइग्रेस योर दिस क्लॉज ऑन पेज 27 annexure P3, प्लीज रीड इट अगेन, रीड क्लॉज 5। हाँ ठीक है ना, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, समिति कहाँ, समिति का गठन कहाँ है, क्योंकि उसमें एक सिंगल आदमी का था जो आपने पिछली बार दिखाया था। दिखाइए, मैं इसको आप खोलिए ना। सर क्या हो रहा है, कुछ एक इम्पोर्टेंट सर, मैं इसलिए यहाँ पर ये तो रिकॉर्ड है सर, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्किप द क्वेरी ऑफ द कोर्ट, जी बट सर व्हाट माय एंजाइटी इज जी योर लॉर्डशिप में काइंडली, आई होप माय लॉर्ड योर लॉर्डशिप वुड सर्टेनली अप्रिशिएट जी the anxiety of Public Service Commission. जी So, there are more than 2,31,000 forms जी which were submitted by the candidate, जी out of which more than 1,71,000 candidates appeared in the preliminary exam. ठीक है, that I know as many as 6,000 candidates they are waiting जी for their opportunity to appear in the final examination. जी Hardly 100 to 150 petitioners are there, madam, जी before your lordship, having no basis and to file a petition, madam. They have, I mean, they are taking help of their own imagination. नहीं, वो तो कोर्ट विल डिसाइड and that will be subject to the right of your right to file appeal, but let us understand that where is the formation of this committee? नहीं, definitely पहले ये 5 में लिखा विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा, तो ये समिति कितने लोगों की है ये थोड़ा सा बता दे। I will not touch the names, neither I will read the names nor I will ask him to read the names. I understand I just want to know how many persons committee was constituted. तो वो यूनिट वाइज होती है, कहाँ है उसका नियम, कहाँ है कमेटी बनाने के लिए? वेयर इज द सर्कुलर which permits you to formulate a specialist committee, विशेषज्ञ कमेटी? कोई आपने सामने बताया ना आर्टिकल 309 में यू कैन रेगुलेट योर ओन प्रोसीजर, तो प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए क्या निर्देश हैं आपके? कहाँ है वो नॉर्म्स, कहाँ है नॉर्म्स, तो बता दीजिए। अरे भैया, आपने अभी आपके वकील साहब ने बहस करी, इज अ सीनियर काउंसिल, आई हैव नोटेड डाउन दैट आर्गुमेंट that under article 309 PSC or UPSC is entitled to regulate its own procedure. Now you must have formulated certain norms to regulate the procedure of constitution of an expert committee. What are the norms for constitution of an expert committee? हिंदी में बोलूं आपको, ये समझ में आ गया आपको? जी मेरा मेरा एक निवेदन सर, आपकी बात समझ गया, आप ये समिति के गठन से संबंधित और कोई आदेश या सर्कुलर इसके बारे में स्पेसिफिक क्वेरी कर जी एक जी मैंने अभी बताया विषय विशेषज्ञ समिति। एक और चीज साहब अप्रिशिएट कीजिए, पीएससी जो है चाहे वो पेपर सेटर्स हो चाहे रिव्यूअर्स हो चाहे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ये उनके एम्प्लॉइज नहीं होते। हम लोग सर एक डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स जो होते हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से सर, हम वी सर रिक्वेस्ट देम एंड टू ऑफर देयर सर्विसेज मान जी द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। वी आर थैंकफुल टू सच। नहीं भाई, हम भी हाई कोर्ट में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, हमें मालूम है कि उनकी ना तो हम गरिमा को कोई टच करना चाहते हैं, ना हम उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हैं, हम तो प्रक्रिया पूछ रहे हैं जिस प्रक्रिया के तहत आपने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। अरे भाई, circumventing the question will not help the PSC. So where is the norm? You argued. Had it been a case that I wanted to skip your lordship's question, I would really, my lord, make a very humble submission before your lordship that first it is to be tested whether these petitions are maintainable before your. I asked you in the first place. I asked you in the first place कि जिन लोगों ने debate which we are having. No, we are not having an academic debate. You are required to point out that which one of the petitioners had not filed their objections within the prescribed time. So I said in the first place we will throw them out. This is your lordship, but this is not my duty. My lord, if petitioners are requested to demonstrate before your lordship. So let them start. This is the first query which honorable court generally makes to the petitioner, that you make out a prima facie. So let them argue first. You started. No, my lord. You नहीं. This started because your lordship has directed personal appearance of the officer. So that does not mean that the officer who has been asked to remain present will hijack the show and not curtail the right of the petitioners to argue. He can wait for his turn. Let the petitioners argue. I'll ask them to show their locus. Once they fail to show their locus, then lordship may kindly hear them. Yes. So, why I tried to assist this honorable court because the final mains examinations are scheduled for 11th of I know that. For lot of work which is to be completed by the secretary. हाँ ठीक है. There,
distribution of examination material हाँ। and to वो ensure कंट्रोलर ऑफ एग्जाम करता है कि सेक्रेटरी करता है? सेक्रेटरी की भी परमिशन लगेगी ना साहब। अच्छा अच्छा, तो इसलिए मेरा निवेदन था, मैंने सोचा आपकी बातों को मैं ठीक है। करूं, बहुत सारी चीजें जो साफ साफ रखी नहीं गई को। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, आपको राइट है, यू हैव अ राइट टू ऑडियंस, जी। आपको सुना, लेकिन जो 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 ये इशू है आपने जो रेस किया है, लोकस पहले इनका देख लें कि लोकस किस किस का है। My lord, चलिए एक एक करके चलिए। my lord, I will rely on two petitions, your lordship. जी। My lord, ये जो पिटीशन है 3141 जिससे एजी साहब ने बहस चालू my lord, करी है, my lord. उसमें कौन पिटीशनर के वकील है, वहां से शुरू करें। My lord, I am the counsel for the petitioner. हाँ, वहां से उसी को बेस बनाइए, उसी से शुरू करिए। My lord, there is one more petition I will rely, lordship, जी if my lord may permit. जी My lord. My lord, in this WE 3141, lordship, three questions were disputed, your lordship. जी। My lord, first, नहीं, पहले यहाँ से बताइए कि क्या आपने 7 दिवस के भीतर, जैसा एडवर्टीजमेंट में लिखा है, My lord. आपत्ति प्रस्तुत की थी कि नहीं की थी? my lord, I will reply this very, your lordship. नहीं, यू डायरेक्टली रिप्लाई दिस My lord, and एक question- all the counsel for the petitioner come out first with this issue that किस किसने 7 दिवस के अंदर या जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है एडवर्टीजमेंट में, उसमें आपत्ति प्रस्तुत की थी मॉडल आंसर के लिए। Hello. ठीक है, उनको सुनेंगे, बाकी को नहीं सुनेंगे। चलिए, तो वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जिससे आपने आपत्ति प्रस्तुत की। रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ, पहले डेट्स दीजिए। व्हेन वाज द रिजल्ट फॉर प्रीलिम एग्जाम वाज डिक्लेयर्ड? My lord, prelims was conducted on 17th of December, your lordship. 17th December prelims was conducted. Mr. Hello. Anshul Tiwari, 17th December prelims were conducted. 2020. रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ? My lord, provisional answer key was issued, your lordship, जी, on 20th of December 2023. 20th December 23, That is annexure P2, your lordship. P2। जी, And final answer key was published on 18th of January 2024. नहीं वो नहीं, इसके 7 दिन 20 तारीख को किया गया। My lord, आपने 27 तारीख तक आपत्ति कर दी क्या? my lord, इसमें my lord दो issue हैं, your lordship. There are two questions, your lordship, related for not pairing. Anshul Tiwari, you will not succeed like this। Sir, sir. पहले मुझे ये बताइए, 20 तारीख को प्रोविजनल आंसर की लोड होने के बाद Sir. आपने अपनी आपत्ति किस Hello. तिथि को प्रस्तुत करी? गिव मी दैट डेट फर्स्ट, देन आई विल कम टू द क्वेश्चन। My lord, इसी क्वेरी का आंसर दूंगा मैं। हाँ। My lord, प्रोविजनल आंसर की में आंसर सही दिया गया था पीएससी के द्वारा। ऑप्शन सी दिया था ग्रीन मफलर का और AKFI का। एक सेकंड रुकिएगा, देखते हैं। P2 इज द प्रोविजनल आंसर। इज द प्रोविजनल आंसर की, my lord. हाँ, My lord, ग्रीन मफलर का क्वेश्चन है 28 सेट डी का। बुलाइएगा एक बार। हाँ, इधर आइए। ये क्या आता है ये? P2 में ये एरर क्यों आ रहा है? जी, PDF अपलोड, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो कुछ क्या करेंगे हम? क्या केस की हियरिंग मुलतवी कर दें? फिजिकल फाइल दीजिएगा 106.1 की, इसमें लिखिएगा यहाँ पर, during the course of the arguments when petitioner counsel referred to annexure P2 in WP 3141, comma, an error occurred while loading the document, try reloading the page is the caption which is shown on the screen, full stop। श्री इकबाल, आप किस पद पर हैं? Data entry operator submits that error is because of error in loading the page, full stop। This is a serious issue. E-hearing is not supported due to the fault of the IT section of the High Court. Let this fact be notified to the Registrar General, who may take action and bring action taken report within 7 days. And place action taken report before this court within 7 days. P2 पढ़िएगा। हाँ, P2 My lord, my lord, kindly refer question 28, your lordship, set D का set, page number 20 में, my lord, that is the provisional answer key, your lordship. set D का Question number? 28, 28, yes। my lord, वो मैंने क्वेश्चन भी लगाया पेज नंबर 33 पे है, your lordship. एक सेकंड, पेज नंबर 33 पे? मालूम। नहीं, 33 पे तो ठीक है, क्वेश्चन आपने लगाया होगा। My lord, उसका हमने सही आंसर लगाया था option C. 28 का, 28 सेट डी का। My lord, my lord. किस नंबर पे बताइए, क्योंकि ये तो उन्होंने, तो हमें, हमारे लिए एक काम ये भी हो गया कि हम खोजें बैठ के। my lord, पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन है वो। अरे भाई, क्वेश्चन से मतलब नहीं है। 28 इसका ऑप्शन सी दिया है। My lord, हमने सी ऑप्शन टिक किया था। हाँ, और सी ऑप्शन के दिया द्वारा। है। पेज 33, My lord, पेज 33। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ नॉइज, ठीक है। My lord. उसके बाद इन्होंने इसको करेक्ट कर दिया। My lord, उसके बाद उसमें PSC in the final answer key has added another option as a noise air pollution also. एक सेकंड, 18 जनवरी को फाइनल रिपोर्ट फाइनल आया है My ना? lord, my lord. 18 जनवरी पेज नंबर 18 पे, your lordship. फाइनल आंसर की क्वेश्चन
28 of set D, provisional list shows option C, noise, as the correct answer. Later on 18 जनवरी, नॉइस के साथ क्या जोड़ दिया? एयर पोल्यूशन, एयर, बी और सी को इन्हें करेक्ट कर दिया लॉर्डशिप। एयर, ऑप्शन बी वाज एडेड। उससे आपको क्या प्रेजुडिस हुई? मतलब एज पर दी सोर्सेज लॉर्डशिप, मतलब सोर्सेस पे बाद में आएंगे, मतलब ठीक है, चलिएगा। अभी Uh, दूसरा बताइए। मतलब तो ये second- ये इसकी तो आप आपत्ति कर नहीं सकते थे क्योंकि सही आंसर यस था। मतलब चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइए। मतलब सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, हेडक्वार्टर्स ऑफ एकेएफआई एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ 63 इंडिया, जी, उसका पेज नंबर 34 में हमने क्वेश्चन को भी वो किया है। एक सेकंड, सेट डी में ही देख रहे हैं ना हम? मतलब सेट डी सेट डी इसमें लॉर्डशिप 63 मतलब प्रोविजनल आंसर की में इसमें जयपुर ने पहले टिक किया था। जयपुर वाज द करेक्ट आंसर व्हिच वाज गिवन बाय द एमपीपीएससी। जी, लेटर ऑन दे चेंज इट टू दिल्ली। यस लॉर्डशिप। जी, एक सेकंड, क्वेश्चन 63 ऑफ सेट डी, ये रीजनल आंसर एस सी जयपुर, लेटर ऑन चेंज टू दिल्ली। जी, इसका भी आप आपत्ति नहीं उठा सकते थे, ये तो सही आंसर था। चलिए, मतलब एंड मतलब फॉर थर्ड क्वेश्चन पिटिशनर हैज नॉट रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन लॉर्डशिप ठीक है विद इन टाइम मतलब जी, ठीक है, छोड़िए उसको। कौन से आप दोनों ने 106 एंड 106? सिंगल पिटिशनर मतलब नहीं, एक और दो दोनों ने नहीं लिया ना ऑब्जेक्शन। 6 आपकी दो पिटीशन है ना, 106 एंड 106.1। मतलब 106.1 में एक फैक्ट है थोड़ा नया है। उसमें पिटिशन नंबर 1 ने आपत्ति ली है। मतलब आई विल शो मतलब इन रिगार्ड टू क्वेश्चन नंबर दिस 7 आल्सो, मतलब इन रिगार्ड टू 3 क्वेश्चंस है लॉर्डशिप, फॉर डिलीशन ऑफ 3 क्वेश्चंस है लॉर्डशिप। मतलब काइंडली रेफर मतलब WP 5075 5075 जी। इसमें तो आप, अच्छा हाँ, क्या है इसमें? मतलब हियर मतलब पिटिशनर हैज डिस्प्यूटेड 3 नहीं, तो क्वेश्चन इसमें तो दो ही क्वेश्चंस डिस्प्यूट किए ना, 106 और 106.1 में तो दो ही क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड हैं। मतलब उनमें 2 हैं। अच्छा, इतना बताइए, कट ऑफ कितना था इन दो, पहले इन दो पिटीशंस को डील कर लें, एक एक करके चलेंगे। कितना कट ऑफ था? मतलब 106 में जी, कट ऑफ अलग अलग थोड़ा ना होगा भाई, कट ऑफ। मतलब अलग अलग कैटेगरीज कितने मतलब हाँ, अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ बता दीजिए। मतलब I have annexed that to your lordship. Annex of P5 is the cutoff list, your lordship. पेज नंबर Page number 33. इस पिटीशन में My lord is referring to अभी आपने जो पिटीशन बताई थी 3141. 3141 3141, my lord. Cutoff list. अनारक्षित ओपन में 148 158 पेज 31 पर, My lord. पेज 31 पर 158 158. और ओबीसी के लिए 156। My lord. आप लोगों के कितने नंबर आए? My lord, in this petition, your lordship, the petitioner has scored 154 marks, your lordship. किसमें? In WP 3141. 3141 में किस कैटेगरी के हैं ये? My lord, he belongs to OBC category. ओबीसी 154 My lord, 154 marks. जी, ठीक है। और 5714 में In 5714, your lordship, the petitioner number 1 has scored 156 marks. He belongs to unreserved category. And the cutoff was 158, your lordship. जी, ठीक है जी। और पिटीशन नंबर 2 Petition number 2 scored 156 marks and the cutoff was 158, your lordship. जी, ठीक है जी। और पिटीशन नंबर 2 Petition number 2 scored 156 marks, your lordship. He belongs to EWS category. उसका cutoff 158 है, your lordship. जी, ठीक है, ठीक जी। ठीक है, हाँ, फिर क्या हुआ? मतलब now I am referring to WP 5075 106.2, your lordship. जी, With my lord's permission. 10 5075 106.2. 5075
क्या खोलेगा भाई? My lord, I don't think, my lord. नहीं नहीं, अभी तो सवाल संभव ही नहीं है। तो वही वेडनेसडे को जाने है वो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, ऑफ द लिस्ट कर दीजिए। अपने आप आएगा।